welcoming you all back to another session of Mostly Current Affairs. The date of the day is 9th of January 2021, and we shall be seeing all the articles which are important and relevant from the exam's perspective. So, our idea here is not only to understand current affairs but to also understand various perspectives which are attached with a particular current news or a current affair so that we can use them in the examination in a very innovative manner to get an edge over others. Let us begin this particular session today. And to all the new learners who have got associated with us for the very first time, please allow me to introduce to them few of the benefits of an academy subscription first. If you take an academy subscription, you get unlimited access to all the educators, their courses on an academy's platform. Apart from that, all the classes on an academy are live, which makes the environment of class very much interactive and engaging. You also get live test and doubt clearing sessions at regular intervals जो ensure करते हैं कि आपका regular basis पे assessment होता रहे and no gray area of yours is left to be touched upon during this preparation of yours of civil services examination. You can easily take the Academy subscription by downloading an Academy's learning app and installing it on a mobile phone. After that, you will be having two options of a subscription. One would be Plus subscription, and the second would be Iconic subscription. Plus में multiple options have the duration ranging from 1 month to up till 36 months. You can opt for any of the duration depending upon your own need and requirement. But the recommended plan here would be 1 year plan, जो आपको cost करेगा 49,500 rupees का, and you can avail extra 10% off by using my code NAMAN NAMAN, which will provide you further flat 10% off, and the final price would then be reduced to 44,550. सेकेंड ऑप्शन है आइकॉनिक का. आइकॉनिक में डेफिनेटली आपको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स मिलते हैं देन द प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड सो इट इज लिटिल बिट ऑन द एक्सपेंसिव रेंज और ऑन द एक्सपेंसिव साइड. एक साल का आइकॉनिक आपको पड़ता है 69,500 रुपीज का. इसमें भी आप 10% अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड नमन, एंड देन द फाइनल प्राइस वुड बी 62,550 रुपीज. डायरेक्टली हम आते हैं आज के आर्टिकल्स पे. एंड रिमेंबर, बाय यूजिंग माय कोड यू नॉट ओनली गेट द डिस्काउंट बट आल्सो माय पर्सनल गाइडेंस एंड मेंटरशिप. फाइन. आज आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो आर्टिकल्स हैं जो मैं आपके साथ थोड़ा पर्सपेक्टिव वे में उनमें आपका पर्सपेक्टिव में डेवलप करना चाहता हूं, स्पेशली द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स. सो दीज आर द टू आर्टिकल्स जो आज हम पहले पिक करेंगे, एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव, स्पेशली how and why India should deal the hostile attitude or the assertive attitude of China is clearly mentioned in these articles. पहला आर्टिकल talks about the multilateral dialogues which China has consecutively for the third time concluded since the advent of the COVID-19 pandemic. इसको समझने के लिए प्लीज पहले आप रिकॉल करिए इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, काफी सारे रीजंस हैं जो हमने डिस्कस करे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज द पॉलिसी विच हैज बीन प्रायोरिटाइज्ड द मोस्ट बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. गवर्नमेंट की मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. पॉइंट नंबर 1. Point number 2, it is this policy which has failed to achieve its own objectives and deliver the expected outcomes. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आज हम फेस कर रहे हैं, especially with respect to trust and confidence, reduced strategic influence of India on its own neighborhood, and growing influence of China in our neighborhood. These are clear manifestations of the ineffectiveness of neighborhood first policy. जब हमने इसका डिटेल डिस्कशन करा था, तब हमने इंडिविजुअल कंट्री स्पेसिफिक वाइज देखा था कि किस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन स्टेबलाइज्ड हैं, इंप्रूव हुए हैं, एंड देयर वर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड चाइना जहां पे वी हैव बीन विटनेसिंग फ्री फॉल इन द रिलेशनशिप. फिर हमने डिस्कस किया था सार्क एंड बिम्स्टेक को हमने साथ में लिया था. वी अंडरस्टूड इट एंड वी कंक्लूडेड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन सार्क,
that it is why it is important for India to also pay attention to SARC. Because if India vacates its position from SARC, then it can be occupied by China. And that is happening now. ये आपको सब्सटैंशिएट करने में हेल्प मिलेगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल because it says that 3 consecutive multilateral dialogues have been conducted and successfully concluded by China, जिसमें participants were of the South Asia, or you can say the countries of our neighborhood, like Sri Lanka, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ये 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके साथ, अफगानिस्तान को हटा दीजिए, अफगानिस्तान के साथ वी हैव हैड गुड कॉर्डियल रिलेशंस, वी हैव हैड वेरी रोबस्ट इन्वेस्टमेंट टिल नाउ। हमने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में अभी तक किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो चेंज्ड आवर अफगान पॉलिसी। ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। The clear manifestation of that was the $80 million investment proposed by the government of India, irrespective of the fact that Taliban is gonna assume greater role and significance in the Afghanistan after the intra-Afghan talks through the Afghan peace process. Fine. तो अफगानिस्तान को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप साइड में कर दीजिए। बट अगर आप श्रीलंका और बांग्लादेश को देखते हैं तो ये पार्टिसिपेट कर रही है कॉन्सिक्यूटिवली। एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ कंट्री, नेक्स्ट कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, नेपाल। नेपाल हैज बिकम अ लिंचपिन ऑफ चाइना आफ्टर श्रीलंका। नाउ चाइना इज मेकिंग इनरोड्स सक्सेसफुली in the South Asian region where India used to have or used to play a leadership role. तो ये क्लियरली आपको लिंक करना है। इसको आप कितनी चीजों से लिंक करेंगे आप प्लीज ये देखिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सार्क एंड बिम्स्टेक, ये तीनों चीजों को आपको लिंक करना है यहाँ पे एंड अंडरस्टैंड करना है। तो इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स मेंशन है, लाइक लिंच पिन वर्ड मेंशन है, दैट नेपाल हैज बिकम अ न्यू लिंच पिन ऑफ China and is being leveraged by China to reduce the bargaining power of India. Point number 1. बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ डेफिनेटली हमने डिस्कस करा था कि कुछ डेंट्स आए थे रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ एनआरसी एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बट बोथ ऑफ अस आर डूइंग वेरी गुड नाउ। और वाटर एग्रीमेंट में भी थोड़े इश्यूज हैं, फाइन, वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड दैट एज वेल। बट बांग्लादेश के साथ एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चाइना ने कुछ टाइम पहले क्या करा था, इट प्रोवाइडेड मेजॉरिटी ऑफ इट गुड्स एक्सेस टू चाइना विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट ड्यूटी वेव ऑफ कर दी थी मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स पे, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स पे फ्रॉम बांग्लादेश। श्रीलंका एंड नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे बनते हैं। श्रीलंका के स्पेसिफिक ये पर्टिकुलर आर्टिकल है टू एड्रेस the deteriorating relations between India and Sri Lanka. Recently, a visit was made by the India's External Affairs Minister. और यहाँ पे majorly the point was 13th Amendment, because elections भी आ रहे हैं तमिलनाडु में, तो अगेन ये इशू राइज होगा। तो 13th Amendment को हमें होल्ड करना है, because now the air in Sri Lanka is to do away with the 13th Amendment. क्या है 13th Amendment? आपको मैं एकदम सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं। यही आपको एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है। अब लोग इसमें पूरा एलटीटी वॉर समझने बैठ जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। सो देयर आर बेसिकली 2 major communities in Sri Lanka. One is Sinhalese and the second is Tamil. Tamilians are minority, Sinhalese are Buddhist who are in the majority in Sri Lanka. इंडो श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ था 1987 में, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करा था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है दैट इज तमिलियंस, उनको सर्टेन राइट्स मिले, उनके प्रोविंसेस जहां पे वो मेजॉरिटी में है वहां पे उनको ऑटोनॉमी मिले टू फंक्शन, गवर्नेंस ऑटोनॉमी। एंड बिकॉज ऑफ इंडियाज प्रेशर, श्रीलंका हैड टू इंक्लूड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन 13th Amendment. 13th Amendment basically devolves the power from the center to these provinces
to all the 9 provinces basically, but our idea was that these powers should be devolved at least to the provinces where Tamilians are in majority. तो ये है 13th amendment, devolution of power from center to the provinces in Sri Lanka. We basically went for it so that Tamilians can enjoy autonomy. लेकिन श्रीलंका ने हाफ हार्टेडली इसको इंप्लीमेंट करा. Powers like that of land and police were still retained or were retained by the central government, by the Sri Lankan federal setup, and were not devolved to the state of the provinces. And now elections conduct नहीं किए गए, excuse दिया गया COVID-19 का, but the air is that इसको all together एब्सॉल्व कर देंगे, 13th अमेंडमेंट को हटा देंगे. तो ये एक मेजर कंसर्न है इंडिया के लिए, बिकॉज अगेन द इशू विल राइज. फाइन. सेकेंड, इंडिया के कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं श्रीलंका में. इंडिया और जापान ने कलेक्टिव मैनर में दे टुक अप द डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट कंटेनर पोर्ट इन द कोलंबो पोर्ट ऑफ श्रीलंका, जहां पे श्रीलंका ने यह बात रखी दैट 51% और मेजॉरिटी वी विल बी कीपिंग विद अस एंड ओनली 49% स्टेक विल बी गिवन टू द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड जापान. श्रीलंका ने यह बात क्यों बोली? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपीरियंस ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट. हम्बनटोटा पोर्ट में डेट ट्रैप हुआ था श्रीलंका के साथ, because China had given excessive funding, excessive loans to Sri Lanka, which it could not service again, and it had to give it to the lease to China for 99 years. तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना क्रिएट हो, इसलिए इंडिया और जापान को बोला कि आप 49% स्टेक रखेंगे और आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करेंगे. नाउ द एयर इज कि ये प्रोजेक्ट भी इंडिया और जापान से वापस ले लिया जा सकता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, चाइना के क्या क्या इन्वेस्टमेंट है आप अगर समझेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा. एक तो हम्बनटोटा पोर्ट 99 इयर्स की लीज पे चाइना ऑपरेट कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, पोर्ट सिटी इज बीइंग डेवलप्ड बाय द चाइना. अपार्ट फ्रॉम दिस, SEZ along the हम्बनटोटा and Colombo is being developed by the China. And Southern Expressway in Sri Lanka is being developed by the China. हमने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान की ओवरऑल फॉरेन डेट देखी थी, कितनी है? 5% से ज्यादा उसको चाइना को वो ओ करता है. श्रीलंका में इट इज मोर देन 13% इट ओज टू चाइना. एंड चाइना's influence in Sri Lanka is very much clear from the fact that not only Sri Lanka has abandoned the light rail project of Japan, but has also refused the US offer under the MCC. MCC stands for Millennium Challenge Corporation. Millennium Challenge Corporation एक एजेंसी है that was created in 2002 by the George Bush in United States, जिसके थ्रू ये फंडिंग प्रोवाइड करते हैं टू द कंट्रीज डेवलपिंग, लीस्ट डेवलप्ड, मिडिल इनकम कंट्रीज, ताकि वहां पे डेवलपमेंट किया जा सके, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रोथ मॉडल्स क्रिएट किए जा सके. बट दे एंश्योर दैट दैट कंट्री इज डेमोक्रेटिक इनफ, दैट कंट्री हैज द एग्जिस्टिंग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच यूएस वांट्स. तो ये बेसिकली यूएस यहां पे कोशिश करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स कि उस कंट्री के फाइनेंशियल, लीगल, लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को वो शेप कर सके अकॉर्डिंग टू इट्स ओन विम्स एंड फैंसीज बाय प्रोवाइडिंग द ग्रांट्स. तो श्रीलंका ने एमसीसी की ग्रांट विच वाज ऑफ अराउंड $450 मिलियन उसको रिफ्यूज कर दिया. जापान को एक प्रोजेक्ट दिया था, लाइट रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, उसको वापस ले लिया. एंड नाउ देयर इज ओनली वन इन्वेस्टमेंट दैट इंडिया एंड जापान टुगेदर आर प्लानिंग in the form of east container terminal, which can also be taken up. So the dictation is coming basically from the China, because China के ऊपर कितनी, श्रीलंका के ऊपर कितनी डेट है? more than 13% of its total foreign debt. अब यहां पे दो मेजर डिमांड है श्रीलंका की इंडिया से. एक तो है कोविड वैक्सीन आप हमें प्रोवाइड करेंगे. यू सी, बाय यूजिंग द चाइना कार्ड, नेबरहुड कंट्रीज या कोई भी एक छोटी कंट्री
इंडिया के साथ अपनी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करती है। नेपाल ने भी सेम किया। जब 2014-15 में एलिजिटली हमने ब्लॉकेट किया था, तो उसके बाद नेपाल को एक्सेस प्रोवाइड किया चाइना ने ऑफ इट्स पोर्ट्स, तो चाइना के पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ गया। एंड नाउ चाइना इज टॉकिंग टू कम अप विद द हिमालयन ट्रांस नेटवर्क on the lines of BRI, which it is planning to cover or take from the Nepal. तो इंडिया की यहाँ पे सोवरेनिटी की ही सिर्फ बात नहीं है, इंडिया की यहाँ पे असर्टिव और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस की बात है, इंडिया का यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात है, बिकॉज इट इज आवर नेबरहुड एंड वी हैव बीन बिग ब्रदर ऑफ दिस नेबरहुड सिंस आवर इंडिपेंडेंस। तो ये पॉइंट्स थोड़े से आप अंडरस्टैंड करिए कि चाइना कैसे इन रोड्स डेवलप कर रहा है। एक तो श्रीलंका का मैंने आपको एग्जांपल दिया, पॉइंट नंबर 1। नेपाल का मैंने आपको ट्रांस हिमालयास नेटवर्क का एग्जांपल दिया, जो चाइना और नेपाल डेवलप करने वाले हैं ऑन द लाइंस ऑफ BRI। अफगानिस्तान को सीपेक में इंक्लूड करने की बात कर रहा है अब चाइना, सीपेक ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगेन पार्ट ऑफ BRI। अब अफगानिस्तान अगर उसमें इंक्लूड हो जाएगा, सो वी आर नॉट इन अ पोजीशन एज ऑफ नाउ टू काउंटर द BRI इफ चाइना एंड पाकिस्तान आर इंक्लूडेड इन दैट। बट इफ अफगानिस्तान कम्स इनटू द पिक्चर, देन फॉर हाउ लॉन्ग यू आर गोना अपोज द कंट्रीज? इवन यूके इज विलिंग टू बिकम पार्ट ऑफ BRI, so are you in a position to oppose it? No. For how many countries you basically will be opposing the countries? It is not practically possible. So rather, either you will have to increase this strategic influence of yours enough so that you can cause deterrence, the countries do not join the BRI and strategic agreements with China, or you yourself will have to become part of these projects, so that by becoming the part of project you are in a better position to control the activities out there. इसीलिए ये आजकल प्रपोजल है that India should become part of CPEC and instead allow CPEC to pass it through the India. तो इंडिया के जो कंसर्न्स है स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी के, वो भी दूर हो जाएंगे, एंड इंडिया व्हेन विल बी इन कंट्रोल ऑफ CPEC विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू हैव अ लुक ऑन द एक्टिविटीज। और जो पाकिस्तान ने एक लेवरेज गेन करा है अगेंस्ट इंडिया बाय कंक्लूडिंग डील एक्सक्लूसिवली विद चाइना, वो लेवरेज खत्म हो सकता है। तो ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है अमंग द एक्सपर्ट्स, बिकॉज बाय अबैंडनिंग CPEC और BRI प्रोजेक्ट इज नॉट अ सोल्यूशन व्हेन मल्टीपल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। ब्रिक्स में हमने देखा था, देयर इज ओनली वन कंट्री हु इज अगेंस्ट BRI इन द एंटायर ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंडिया। रेस्ट ऑल द 4 कंट्रीज आर टुवर्ड्स चाइना। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को हमें कैसे रिवाइव करना है वो आपको समझना है, कैसे रीओरिएंट करना है, बेसिकली रीशेप करना है। सार्क की इंपॉर्टेंस समझनी है, बिकॉज द मोमेंट इंडिया वेकेट्स इट्स पोजीशन it will be captured by China and then it will be a major defeat for India if it loses its own neighborhood, and it is already happening. तो ये 3 मल्टीलैटरल डायलॉग्स हुए, इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो क्लियरली बताता है दैट कंट्रीज आर विद चाइना। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट और कोविड वैक्सीन, दीज आर द 2 की डिमांड्स ऑफ श्रीलंका। तो उसने अपनी नेगोशिएशन पावर इंक्रीज कर ली है डेफिनेटली। तो कोविड वैक्सीन एक पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर हमने पहले डिस्कस करा था कि इट इज नॉट दैट इंडिया हैज नॉट एक्सटेंडेड इट्स सॉफ्ट पावर टू श्रीलंका। सेवा सूर्या एम्बुलेंस सर्विस हमने ऑल 9 प्रोविंसेस में प्रोवाइड करी है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, लोन नहीं दिए हैं हमने, इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स हमने प्रोवाइड करी है सेवा सूर्या एम्बुलेंस सर्विस टू श्रीलंका। Then we have provided $400 million for the housing sector to Sri Lanka, and we also have done on humanitarian aid and assistance programs under the Mission Sagar to Sri Lanka. We already have also achieved or successfully met the demand of Sri Lanka for the currency swap agreement. Now Sri Lanka wants another currency swap agreement of $1 billion. Currency swap मैंने आपको बताया है, श्रीलंका बेसिकली एक लॉजिस्टिक्स हॉटस्पॉट है। कोविड-19 के कारण जो सबसे बड़े सेक्टर्स हिट हुए, द हार्डेस्ट हिट सेक्टर्स वर लॉजिस्टिक्स एंड टूरिज्म। तो कंप्लीट श्रीलंका की इकोनॉमी यहाँ पे कोलैप्स हो गई।
So Sri Lanka wants to protect its money, protect its foreign exchange because it has to service the foreign debt. तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक बेस्ट सॉल्यूशन सामने आता है कि हम आपको श्रीलंकन रुपीस देंगे सर्टेन अमाउंट के, सेम अमाउंट के आप हमें इंडियन रुपीस देंगे. गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज करेंसी स्वैप. तो होगा क्या, इंडियन रुपी क्योंकि स्टेबलाइज्ड है तो दे श्रीलंका कैन विल बी इन अ पोजीशन टू सर्विस इस डेट यूजिंग इंडियन रुपीज और उसका फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन रहेगा. फाइन, क्योंकि श्रीलंका की करेंसी तो डिटोरेट हो गई है, अगर वो अपनी करेंसी यूज करेगा तो फॉरेन एक्सचेंज लार्जर नंबर्स में डिटोरेट होगा. इससे बेटर है करेंसी स्वैप कर लो, जिस कंट्री की करेंसी स्टेबलाइज्ड है उस कंट्री की करेंसी ले लो और उससे अपनी डेट को सर्विस करो. सो दैट इज द प्लान. तो अब श्रीलंका बोल रहा है कि $1 बिलियन की और करेंसी स्वैपिंग करनी है. So that is already being considered by the RBI and the same demand has been put in front of China as well by Sri Lanka. तो China ने definitely because of its greater economic clout provide करा है assistance. China के सामने $500 billion की डिमांड रखी थी श्रीलंका ने and it met it. इमीडिएट प्रोवाइड कर दिया था उसने श्रीलंका को. सो ये जो प्रेडिटरी इकोनॉमी है इससे पाकिस्तान भी डेट रिटर्न हो रहा है, चाइना श्रीलंका भी डेट रिटर्न हो रहा है, लेकिन जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है इसका इंपैक्ट डेफिनेटली हाई होता है बट लॉन्गर रन में आपको देखने को मिलता है. तो इंडिया विल हैव टू रीओरिएंट इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड स्पेशली द मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड कंपोनेंट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी which is neighborhood first policy, which as of now is affected the most or is ineffective the most or is the most ineffective you can say. तो ये प्लीज इन दोनों आर्टिकल से समझने की कोशिश करिए. इंडिया श्रीलंका मुझे पता है हमारा बायलैटरल टाइज इंटरनेशनल रिलेशंस में पेंडिंग है, इसको मैं कवर करूंगा. ज्यादा कुछ है नहीं इंडिया श्रीलंका में, तो आज तो नहीं, कभी और इंडिया श्रीलंका को मैं आपको डेफिनेटली कवर करूंगा. इसके अलावा मुझे लगता है कि बाकी सारे कंट्रीज के साथ हम रिलेशंस डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. एक पाकिस्तान बचा है हमारे नेबरहुड में और एक श्रीलंका बचा है, बाकी सब हम ऑलरेडी आई थिंक कर चुके हैं. बाकी आप मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ मिस आउट मेरे से हो रहा है तो. फाइन, तो ये आर्टिकल प्लीज एक बार रीड करिए कि सीपैक को अफगानिस्तान में एक्सटेंड करने की बात, हिमालयन ट्रांस नेटवर्क क्रिएट करने की बात एंड मल्टीलैटरल डायलॉग्स फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम. यहाँ पे मैं आपसे बार बार बोलता आया हूं कि नेचुरल पार्टनर्स की जब बात करते हैं दैट इंडिया हैज नेचुरल रिलेशनशिप, नेचुरल पार्टनर्स, स्पेशल पार्टनर्स ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको हमेशा बताया एक फ्रांस है और एक भूटान है एंड उसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं. तो फ्रांस का मैंने एग्जांपल आपको कुछ टाइम पहले ही दिया था दैट हाउ फ्रांस वाज वेरी मच आउटराइट and it vociferated against China and it said that we have lowest relations as of now with Pakistan. और यहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों डायलॉग में भूटान, the second country which I always tell that it is the special partner of India, इसने भी पार्टिसिपेट नहीं करा along with India. ना इंडिया ने पार्टिसिपेट करा ना भूटान ने पार्टिसिपेट करा. और एक मालदीव्स भी है, लेकिन मालदीव्स के साथ भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं हमारे रिलेशन. जब हमने इंडिया मालदीव्स देखा था तो ये चीजें हमने अंडरस्टैंड करी थी. गेटिंग माय पॉइंट? तो श्रीलंका के साथ भी बेसिकली फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है रिलेशंस में. फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम अभी क्यों अराइज हुई? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द लीडरशिप. 2019 में इलेक्शंस हुए, लीडरशिप चेंज हुई, तो उन्होंने एक तो 13th अमेंडमेंट पे टारगेट करा एंड दे आल्सो हैव इंट्रोड्यूस्ड द 15th अमेंडमेंट. 15th अमेंडमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी जो पहले गवर्नमेंट थी विक्रमासिंघा की, उसने पावर्स को पार्लियामेंट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करी थी फ्रॉम द प्रेसिडेंट. बट थ्रू द 15th अमेंडमेंट श्रीलंका, द न्यू Rajapaksa government is again trying to revert that by giving president more powers, by taking away the powers from the parliament. So it is trying to reverse the gains made through the 14th amendment through by the 15th amendment. ठीक है. और 13th अमेंडमेंट इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड की बात करता है 1987 में, जिसमें हमने प्रोविजनल ऑटोनॉमी देने की बात करी थी स्पेशली टू द प्रोविंसेस. ऑल्दो ये पूरे 9 प्रोविंसेस में एप्लीकेबल है, लेकिन स्पेशली टू द प्रोविंसेस वेयर तमिल्स आर इन मेजॉरिटी. एक क्रिटिसिज्म आता है 13th अमेंडमेंट का
वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड होगा तो बेटर होगा आपके लिए एनालाइज करना। ये एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि जब छोटी कंट्रीज होती हैं तो प्रोविजनल ऑटोनॉमी देने का कॉन्सेप्ट वहां पे जनरली देखा नहीं जाता है। एंड फॉर लॉन्ग, एज यू सी कि 1987 में पहली बार ये अकॉर्ड साइन हुआ था, तो फॉर लॉन्ग अपोजिशन पार्टीज बेसिकली हैव यूज्ड दिस इशू कि आप इंडिया के प्रेशर में आके प्रोविजनल ऑटोनॉमी दे रहे हो व्हेन वी आर अ स्मॉल आइलैंड नेशन, व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो व्हाई you are allowing another country to interfere in our internal matters? ये एक छोटा सा क्रिटिसिज्म आता है। तो यहां किसी को कोई डाउट है? पूरे यहां पे हमने सिर्फ पर्सपेक्टिव डेवलप करा है, मैंने किसी की भी डिटेल्स आपको नहीं दी है एज ऑफ नाउ। जो बेसिक रिक्वायर्ड था वो आपको बताया है, बाकी मुझे लगता है कि ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर्सपेक्टिव में किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप सार्क में भी यूज करेंगे, सार्क वर्सेस बिम्स्टेक में यूज करेंगे, अकेला बिम्स्टेक पे क्वेश्चन आएगा तो वहां पे भी यूज करेंगे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी, उसमें आप इसको यूज करेंगे एंड सो ऑन। आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बाकी आर्टिकल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आज। तो इंडिया में जब भी हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कोई भी आप स्पीशी उठाइए, उसमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा अंडर द थ्रेट, दैट इज हंटिंग एंड पोचिंग। ये कॉमन थ्रेट है। अभी हमने पेंगोलिन देखा था, उसमें भी ये थ्रेट था। उसके पहले हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा था, तो उसमें ये मेजर थ्रेट नहीं था। मेजर थ्रेट उसमें पावर लाइंस थी, लेकिन हंटिंग एंड पोचिंग वाज मेंशन्ड इन देयर एज वेल। तो कोई भी कंजर्वेशन एफर्ट हमारा होता है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द हंटिंग एंड पोचिंग इन आवर कंट्री, व्हिच बेसिकली affects our conservation attempts and also leads to the illegal trade in wildlife, जो साइट्स को वायलेट करता है, डायरेक्टली वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उतने अभी केपेबल ही नहीं है, इक्विप्ड नहीं है टू डील विद द हंटर्स एंड पोचर्स। नाउ दिस इज अ वेरी सैड सिचुएशन दैट rangers in our country, ranger is a good position, good administrative position, forest administration की अगर मैं बात करूं तो in states like MP and Karnataka, rangers have been equipped with lathis or stick, wooden sticks के उनको equip करा गया है when poachers are using sophisticated arms and ammunition. So how you are expecting forest officials to confront with these poachers or these hunters? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आप कहां यूज करेंगे। अगर कंजर्वेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो मैंने कुछ स्कीम्स आपके साथ पहले डिस्कस करी थी, वो आपके पास है। देन ओवरऑल मैंने आपके साथ मैकेनिज्म डिस्कस करा है कंजर्वेशन में आप किन किन चीजों का, किन किन फ्रेमवर्क की बातें करेंगे। तो कलेक्टिवली अगर आपने एक जगह पे नोट्स बनाए होंगे तो वहां पे आप ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का मेंशन कर लेंगे। फाइन, कि फॉरेस्ट रेंजर्स को, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की बात करिए, सिर्फ रेंजर्स की नहीं, रेंजर्स को एग्जांपल में यूज करना, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की बात करिए, दैट दे हैव नॉट बीन इक्विप्ड वेल टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेज ऑफ हंटिंग एंड पोचिंग इन आवर कंट्री। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत अच्छी बात बोली है, दैट अदर एजेंसीज शुड आल्सो बी रोप्ड इन लाइक ईडी एंड सीबीआई। ईडी में स्पेशल विंग क्रिएट किया जा सकता है, अ स्पेशल विंग टू डील विद दीज काइंड ऑफ इंस्टांसेस, बिकॉज ईडी ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क से डील करती है। सीबीआई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क से डील करती है। एंड जो पोचिंग हंटिंग है वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क से लिंक्ड है। So it will become very easy for these agencies to help the forest officials to deal with these kind of problems, and also they can provide much required expertise, training, etc. तो ये एक important चीज है जो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो एमिकस क्यूरी ने बताया कि फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से पिक करेंगे और यूज करेंगे। ठीक है, ओके। SC टू हेयर प्ली अगेंस्ट कन्फेशन। देखिए, रिलीजियस राइट्स, यहाँ पे कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे रिलीजियस राइट्स की बात कर रहा हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लूरलिज्म इन आवर कंट्री and when we say we have a very diverse ethos or we are a pluralistic society,
So we need to be tolerant on one side, and also we need to ensure fundamental rights, equal application of fundamental rights, जो हमने सबरीमाला के केस में देखा था. सबरीमाला केस आपने फॉलो करा होगा मेरे हिसाब से. तो सबरीमाला के केस में हमने ये चीजें देखी थी. हालांकि डोंट वरी, ये सारी चीजें मैं रिपीट करूंगा. ये आर्टिकल वैसे भी मैंने सिर्फ ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे अभी ड्रॉप किया है. ये आर्टिकल अभी सिर्फ फाइल हुआ है, पेटिशन सिर्फ फाइल हुई है अभी सुप्रीम कोर्ट में. इस पे अभी ऑब्जर्वेशंस होंगे, इस पे जजमेंट आएगा. हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसको ट्रैक करेंगे, डीप में डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे. अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको इसको ऑब्जर्व कैसे करना है. जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो आप उसको कैसे ट्रैक करेंगे. तो यू हैव टू फोकस बाय कीपिंग इन माइंड सबरीमाला जजमेंट, जहां पे आपने फोकस करना है फंडामेंटल राइट्स एंड प्लूरलिस्टिक एथोस ऑफ आवर कंट्री. फाइन. तो उस जजमेंट में एक डिसेंट जजमेंट था ऑफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जिनका बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट था दैट नोशंस ऑफ रैशनैलिटी कैन नॉट बी इन्वोक्ड इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन. You cannot ask for reasoning in the matters of religion in this kind of pluralistic society that is India. ये एक डिसेंट जजमेंट था जो सबसे ज्यादा पॉपुलराइज हुआ था इरेस्पेक्टिव ऑफ द मेजॉरिटी जजमेंट, जो which came in favor of women, in favor of women's entry into the Sabarimala. Getting my point? तो ऐसा ही एक religious rights का इशू वापस प्रॉप अप हुआ है. And this time the issue concerns Christianity, जहां पे confessions का नॉर्म है. अब confessions को religious practice ने mandatory बनाया है according to Christianity. तो क्रिश्चियनिटी में फर्दर सेट्स होते हैं. तो जो सेट यहां पे मेंशन्ड है उसने कन्फेशन को मैंडेटरी बनाया है बोथ फॉर मेन एंड विमेन. नाउ इट इज सेड दैट इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 21 as it violates human dignity, as it violates the liberty of thought. आपको मैंडेटरी कन्फेस करना पड़ेगा. इट कैन बी यूज्ड टू ब्लैकमेल, इट कैन बी यूज्ड और इट इज बीइंग यूज्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ विमेन एंड आल्सो इट इज वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 21. तो ये केस एक फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में. नाउ सुप्रीम कोर्ट विल स्क्रूटनाइज दिस केस, विल कंसिडर ऑल द आर्ग्यूमेंट्स एंड देन विल कंक्लूड और विल कम अप विद अ जजमेंट. तो इसको हमें ट्रैक करना है, इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. इंडियन मिलिट्री में क्या क्या इश्यूज हैं और मिलिट्री पर्सनल्स स्पेसिफिकली क्या इश्यूज फेस करते हैं. तो एक कॉमन सिंपल सी चीज बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए. ये तो खैर एक स्टडी की रिपोर्ट है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं वो बहुत हेल्प करने वाला है, आपको सिंपल करने वाला है चीजें. कोई भी सिक्योरिटी फोर्स की बात हो, चाहे आर्मी, चाहे सीएपीएफ, चाहे स्टेट पुलिस फोर्स, इन सारे फोर्सेस के पर्सनल्स एक कॉमन प्रॉब्लम को फेस करते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. तो ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं. इस आर्टिकल में बात हुई है इंडियन आर्मी की कि स्ट्रेस बहुत हाई है अमंग द मिलिट्री पर्सनल्स, जिसके कारण इंपॉर्टेंट फैक्ट, जितने मिलिट्री पर्सनल्स हमारे देश में, आर्मी, इंडियन आर्मी में जितने लोग हमारे देश में कॉम्बैट में मार्टर नहीं होते हैं, उससे ज्यादा सुसाइड कर लेते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड इंपैक्टफुल फैक्ट जो बताता है कि कितने नंबर ऑफ सुसाइड्स हैं अमंग द इंडियन आर्मी, इन द इंडियन आर्मी इन आवर कंट्री. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने स्टार्टिंग में मार्क करा है. अपार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल को आप एक क्विक रीड दे सकते हैं. देखिए यहां पे भी मेंशन्ड है, जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है, यहां पे इंडियन आर्मी मेंशन्ड है, इसको स्लैश करके सिक्योरिटी फोर्स कर देना और स्लैश करके स्टेट पुलिस फोर्स कर देना. जब प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है टू काउंटर इंसर्जेंसी, टेररिज्म, एनवायरमेंट, इट बेसिकली कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज्ड स्ट्रेस लेवल्स. ये रिपोर्ट कंक्लूड करती है और ये मैं आपके लिए यूनिवर्सल फैक्ट बना रहा हूं विच यू कैन अप्लाई टू एनी काइंड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑन विच वर्क ऑन द फील्ड एंड देयर इंडिविजुअल्स, देयर ऑफिशियल्स, स्पेशली आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस
एंड दी स्टेट पुलिस फोर्स, ये आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे प्रॉब्लम क्या होगी इंडियन आर्मी में या कहीं पर भी, इट बेसिकली रिड्यूसेस द मोटिवेशन टू वर्क। ये एक ऐसी जॉब है जहां पे अगर मोटिवेशन नहीं है, एथिक्स में अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट आप बेसिकली। तो ये एक ऐसा इशू है कि अगर इन ऐसी फोर्स है, ये ऐसा जॉब है, ये ऐसा प्रोफेशन है कि अगर यहाँ पे मोटिवेशन खत्म हो जाता है काम करने का, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड टू डिसिप्लिन यू और टू डिसिप्लिन एनी इंडिविजुअल। एंड देन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, गोइंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स, नॉट अबाइडिंग बाय द ऑर्डर्स, कॉम्बैट के टाइम पे बैकआउट कर जाना, डिसिप्लिनरी इश्यूज, ये प्रॉपअप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल कॉम्बैट एफिशिएंसी फोर्स की रिड्यूस हो जाती है। सो द ओनली फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के कारण ही हम इतना ज्यादा डेकोरेट करते हैं फोर्सेस को, ताकि जो पर्सनल्स वहां पे हैं वो रिकॉग्नाइज्ड फील करें, प्रिविलेज्ड फील करें। If this motivation factor is removed, then do you think a person will go on the border just for the sake of certain amount of money to risk his or her life? Answer is no. It is the motivation that keeps them high, and it is reducing, and we need to come up with approach। यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। इट इज नाउ इंपॉर्टेंट कि इंडियन आर्मी मिलिट्री फोर्सेस में डॉक्टर्स के साथ साथ साइकेट्रिस्ट को भी रिक्रूट करा जाए, ताकि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम दूर कर सकें। ठीक है, इंडियन आर्मी में डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल का होगा, बिकॉज उनकी लोकेशंस, उनका टेरेन, उनके वर्किंग कंडीशंस ज्यादा सीवियर होते हैं देन दी स्टेट पुलिस फोर्स। तो ये एक पॉइंट आप यहाँ पे रिमेंबर याद रख सकते हैं, और GS4 में भी इसको यूज करेंगे अंडर मोटिवेशन। जब भी मोटिवेशन में बात आए तुरंत रिकॉल होना चाहिए दिमाग में, सिक्योरिटी फोर्स, स्टेट पुलिस फोर्स एंड इंडियन आर्मी सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है उनके लिए मोटिवेशन। एंड इनफैक्ट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन ब्यूरोक्रेट्स, इंडियन ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस। कितनी सैलरी होती है एक IAS की? बहुत कम होती है व्हेन यू कंपेयर इट टू एन इंडिविजुअल वर्किंग इन MNC। लेकिन स्टिल दैट पर्सन गिव्स हिज और हर बेस्ट टू द सोसाइटी। व्हाई? मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, डेटा आया था, मैंने पिक नहीं करा था जानबूझ के, लेकिन आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा आया था, सॉरी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है ये, नेशनल सैंपल सर्वे का नहीं है, कि GVA, gross value added, will contract of the entire fiscal by 7.7%, and this will be highest since the India has got its independence। इसके पहले भी GVA कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन GVA क्या होता है? GDP से आप बेसिकली टैक्सेस और सब्सिडीज हटा दोगे तो GVA आता है सामने। इट इज मोर appropriate parameter to judge the growth and development of a particular nation than the GDP। Fine? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 7.7%। ये फाइनल नहीं है जो अभी ये डेटा है, दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज ओनली प्रपोज्ड और एक्सपेक्टेड कि इतना कॉन्ट्रैक्शन देखने को हमें मिल सकता है। These are the estimates, fine? तो इसके पहले भी 4 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कब कब हुआ है? ईयर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे 79, 72, 65, 57। लेकिन इतना कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं हुआ, पॉइंट नंबर 1। एंड द यूनिक पॉइंट इज, जो पहले 4 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, दैट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ ड्रॉट्स, मतलब एग्रीकल्चर इंपैक्ट हुआ था। तो तब एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था कि उसने पूरे इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। एंड देन द एग्रीकल्चर यूज्ड टू हैव शेयर इन द ओवरऑल GDP एट अबाउट और नियर अराउंड 35 to 40%। लेकिन अब कितना है? ओनली 14%। बट द चेंज सिनेरियो इज कि अभी ड्रॉट नहीं है, अभी एग्रीकल्चर इज परफॉर्मिंग बेटर when you compare agriculture with other sectors।
तो agriculture is performing much better than all the other sectors, and it is the only sector which has not faced the contraction because of two main reasons: good monsoon, good rains, and lifting up of the restrictions imposed during lockdown from agriculture in a timely manner, जिससे प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं हुई। तो एग्रीकल्चर ने अपनी ग्रोथ मेंटेन रखी एंड इट हैज हेल्ड द इकोनॉमी। अगर एग्रीकल्चर मेंटेन नहीं करता खुद को तो ये शायद 7.7 नहीं होता और ज्यादा हाई एस्टिमेट होता। फाइन। तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर का शेयर, एग्रीकल्चर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स। मेंस में इसको आप इसके बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास मेंस में यूज करने के लिए। तो मेंस के हिसाब से तो उतना नहीं है आर्टिकल, प्रीलिम्स में डेफिनेटली स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इंडिया में पहली बार जीवीए कॉन्ट्रैक्शन के एस्टिमेट्स आए हैं, क्योंकि तब तक बजट भी आ जाएगा, तब तक आप प्रीलिम्स दोगे तो ये आ सकता है स्टेटमेंट कि पहली बार जीवीए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। द आंसर इज नो। आज से पहले जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें मेजर फैक्टर एग्रीकल्चर का था। द आंसर इज यस। इस टाइम भी सबसे बड़ा फैक्टर एग्रीकल्चर का है। आंसर इज नो। इनफैक्ट एग्रीकल्चर हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी आपको जरूरी है। ओके। डीजीसीए ने नॉर्म्स रिलीज करे हैं, तो वैक्सीन डिलीवरी में आपका अपडेट है ये बेसिकली कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। याद नहीं रखना है, बस एक बार पढ़ लो, थोड़ा बहुत थॉट प्रोसेस में आ जाएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। अब क्या, कैसे आप वैक्सीन डिलीवर कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? थ्रू द एरियल मोड बाय द यूसेज ऑफ एयरप्लेन्स, एविएशन। यही प्लान हुआ था ना पुणे से। पुणे इज द हब। इसके बाद 4 डिपोज हैं, सेंट्रल ड्रग डिपोज ऑफ द गवर्नमेंट। एक करनाल में है, एक चेन्नई में है, एक मुंबई में है, एक और दूसरा कहां पर है, एक कोलकाता में है। ये 4 डिपोज में फ्लाइट्स जाएंगी, फिर 41 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। तो जो वैक्सीन आप डिलीवर करोगे, इन वैक्सीन का एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, वो कैसे मेंटेन करोगे? थ्रू दी ड्राई आइस। ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ड्राई आइस। कैसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड? इसको एक्सट्रीम नेगेटिव टेम्परेचर में आप ले जाओ, अबाउट -120 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिडिफाई हो जाता है एंड देन यू कंप्रेस इट एंड गिव इट अ शेप, देन इट इज अ आइस, ड्राई आइस। तो इसको यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट एंड गवर्नमेंट हैज टोल्ड कि हम ड्राई आइस का इस्तेमाल करेंगे टू कैरी और टू मेंटेन द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट ऑफ द वैक्सीन, दैट इज कोविशील्ड और कोवैक्सिन। प्रॉब्लम क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। प्लेन्स में जब प्रेशर, लो प्रेशर आता है और लो प्रेशर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। सेकेंडली, प्लेन्स में टेम्परेचर आप 120 डिग्री का तो दे नहीं पाओगे, टेम्परेचर थोड़ा सा रिड्यूस होगा, तो इट स्टार्ट्स टू एमानेट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ड्राई आइस है ये रिलीज करने लग जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इतनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड प्लेन में होगी तो इट कैन रिजल्ट इनटू स्मोदरिंग इफेक्ट, सफोकेशन एंड अल्टीमेट डेथ भी हो सकती है। तो डीजीसीए ने बोला है कि पैसेंजर्स नहीं होने चाहिए उस प्लेन में, प्रॉपर क्रू की ट्रेनिंग होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मीटर्स लगाने पड़ेंगे आपको प्लेन में जो बताएंगे कि सेफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स अभी प्लेन में मेंटेन है या नहीं, ज्यादा लीकेज तो नहीं हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम द ड्राई आइस एंड सो ऑन। ये गाइडलाइंस डीजीसीए ने रिलीज करी है। प्रीलिम्स के लिए ड्राई आइस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको ड्राई आइस क्या है, मिनिमम टेम्परेचर जरूरी है और जैसे टेम्परेचर कम होगा एयर प्रेशर चेंज होगा, ड्राई आइस विल अगेन ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एथिकल इश्यूज इन दी वैक्सीन, तो अप्रूवल में हमने देखा था, वैक्सीन अप्रूवल में काफी क्रिटिसिज्म हुआ है इन दी हेस्टी नेचर ऑफ द अप्रूवल। सेकेंड फेज क्लिनिकल ट्रायल डेटा के बेसिस पे आपने अप्रूवल दे दिया, जहां पे एफिकेसी डेटा इज नॉट एट ऑल अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कोवैक्सिन। कोविशील्ड का चलो ठीक है, दूसरी कंट्रीज में ट्रायल हो गए, वहां का डेटा आपने ले लिया। कोवैक्सिन जो इंडियन वैक्सीन है, डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक ऑफ हैदराबाद एंड आईसीएमआर,
नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, इसका तो कोई डेटा ही नहीं है एफिकेसी का। ये सेफ है बस ये पता है, इफेक्टिव कितनी है पता ही नहीं है। तो यहां पे एक एथिकल इशू का बस एक समराइज छोटा सा लाइन है, इसको पढ़ लेना। इट सेज प्रोवाइडिंग अ वैक्सीन टू अ हेल्दी पर्सन विदाउट नॉलेज, without knowing the statistical probability of protection, without knowing the protection or efficacy of that vaccine is basically unethical। तो GS4 में थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि ये जो प्रोसेस है ये अनएथिकल है। यू कैन नॉट बेसिकली मेक द एंटायर कंट्री अ प्लेस टू रन क्लिनिकल ट्रायल। वैक्सीन के प्रोसेस अभी तक जितनी वैक्सीन आई है, कोई भी वैक्सीन 5 साल से पहले नहीं बनी है। हर वैक्सीन में एटलीस्ट 5 to 20 इयर्स का टाइम लगा है इन द डेवलपमेंट और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्लिनिकल ट्रायल्स ने लिया है। लेकिन इस बार ये जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, इनको हमने विद इन 1 ईयर निकाल दिया, रोल आउट कर दिया, जबकि इंडिया में नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। Then what was the urgency? You could have waited for the third phase trials, proper data with respect to the safety, quality and efficacy of the vaccine. What was the need to roll out the vaccine in such an urgent manner? ये एक क्वेश्चन अराइज होता है, especially when the COVID cases are coming down. Atrocities against women, especially crime against women. थोड़े से फैक्ट्स हैं यहाँ पे, वैसे तो एक ही फैक्ट है जो मुझे आपको देना था, बाकी थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो अच्छे हैं, आप यूज कर सकते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, स्पेशली रेप की अगर मैं बात करूं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या फैक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो एक एनसीआरबी का डेटा है, एनसीआरबी का डेटा बोलता है that every day in India, NCRB 2019 का डेटा है, every day in India 88 rapes take place. So this is the level of crime against women in India. ये प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रावेट हो जाती है, जैसे अभी एक रेप केस, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक रेप केस आया सामने इन दी हथरस, जहां पे एक आंगनवाड़ी वर्कर के साथ रेप हुआ एंड देन लेटर ऑन शी succumbed to her injuries. The sad part was that an official of National Commission of Women told that women should not step out alone. Women should always take someone whenever they have to step out. So when these type of statements come, especially from the NCW, then the situation becomes more grave and it requires further introspection कि आज भी क्या हम पॉलिसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ओरिएंटेशन इस हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि विमेन को कब घर से बाहर जाना चाहिए, क्या कपड़े पहन के जाना चाहिए, एक्सेट्रा। सो यहां पे जेंडर प्रेजुडिसेस सामने आते हैं, स्टीरियोटाइपिंग सामने आती है, और एक ऑर्थोडॉक्स, अनवांटेड ऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी सामने आता है। पेट्रियार्कल नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, बट इट इज a very unique orthodox kind of attitude of the society wherein you want women to be a passive individual and move according to the societal circumstances, not according to her own demand and requirement. तो ये एक पॉइंट है जो आप ऐसे में जरूर यूज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द एनसीडब्ल्यूज स्टेटमेंट्स, दैट इंडिविजुअल स्टेटमेंट। बहुत अच्छी ओपनिंग होगी एक ऐसे की आपकी, जब आप इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे जो उसने बोला, और फिर आप जेंडर प्रेजुडिसेस पे आएंगे, सोसाइटी के आउटलुक पे आएंगे, एंड देन यू विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द इशू। गेटिंग अ पॉइंट कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। और ये क्राइम का डेटा है ही आपके पास, 88 क्राइम्स, 88 रेप per day in India according to NCRB. And remember one thing, these are not all the rapes, only rapes which are reported, जिनके अगेंस्ट में FIR होती है। बाकी रेप्स कितने होते हैं पता ही नहीं है हमको, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम पुअर पुलिसिंग की प्रॉब्लम है।
ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, इस पे कोई टारगेट नहीं कर रहा है। पुअर पुलिसिंग में आप क्या बात करोगे? पुअर पुलिसिंग में आप बताओगे कि कितना जेंडर पैरिटी है हमारे पुलिसिंग में। ओनली 10% ऑफ द वुमेन इन women's representation is there in the Indian police across all the state police services average। तो जेंडर पैरिटी अगर आप मेंटेन करोगे तो इस टाइप का आउटलुक आपको देखने को नहीं मिलेगा। Approach towards dealing with such kind of incidents will drastically change. More number of FIRs would be reported and immediate investigation, because ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइक रेप की अगर मैं बात करूं, जिसमें अगर आपने इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करा, सो यू कैन नॉट कलेक्ट द एविडेंस एंड एट द एंड होता क्या है, जो अक्यूज्ड है, जो परपेट्रेटर है ऑफ दैट क्राइम, he walks free। so ये प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप जेंडर पैरिटी मेंटेन करोगे अमंग द पुलिस फोर्सेस, पुलिस सर्विसेज इन अ कंट्री। सिर्फ रेप केस में नहीं, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, डाउरी हो, कोई भी केस हो विद रिस्पेक्ट टू एनी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, in fact it will help policing even in the cases of child molestation, child harassment, child sexual exploitation, because they have a different approach of tackling these cases। तो जेंडर पैरिटी बहुत जरूरी है, ये पॉइंट आप और मेंशन करोगे। तो ये दो फैक्ट है, ये दो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, वो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, एक रफ फ्रेमवर्क काइंड ऑफ थिंग। फाइन। प्रिमिटिव माइंडसेट, ये वर्ड में से मिस हो रहा था। प्रिमिटिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, नॉट पेट्रियार्कल, प्रिमिटिव। कल हमने बात करी थी पीरियड रूम्स की, उसके ऊपर आज आर्टिकल आ गया, इट हैज बीन गिवन सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस दे दी। पीरियड रूम बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां से हमने क्या बात करी थी? मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करी थी, जो मैंने बताया था 3 प्रॉब्लम है इंडिया में। पहली प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। अवेयरनेस की प्रॉब्लम काय में है? अमंग दी मेन, वो समझते नहीं है व्हाट इज इट, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स दैट अ वुमेन फेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सेकेंड प्रॉब्लम है अमंग विमेन, 50% विमेन को पता ही नहीं है until they experience their first period that what is period और what is menstrual cycle। ये दो अवेयरनेस की प्रॉब्लम। और तीसरी अवेयरनेस की प्रॉब्लम क्या थी? that they are not, both are not aware of the health and hygiene, how to take care of themselves during the menstrual cycle। ये 3 प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम ने क्या डिस्कस करी थी? एजेंसी की और फैसिलिटी की। फैसिलिटी ले लेते हैं। फैसिलिटी में क्या प्रॉब्लम है? एक प्रॉब्लम है एक्सेस की, टॉयलेट्स ही नहीं है जहां पे वो एक्सेस कर सके, राइट। और दूसरी प्रॉब्लम सैनिटरी पैड्स अवेलेबल नहीं है। कितनी परसेंट वुमेन यूज करती है इंडिया में सैनिटरी पैड्स अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस? 36% ओनली। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? डिस्पोजल की। कैसा डिस्पोजल? सेफ डिस्पोजल। क्यों जरूरी है? 2 रीजन है। प्लास्टिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं सैनिटरी पैड्स में विच आर नॉन डिग्रेडेबल। सेकेंड, इट कैन कंटामिनेट ग्राउंड वाटर एंड वाटर बॉडीज इफ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सेफ मैनर। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में। बेसिकली पीरियड रूम क्या है? थाने डिस्ट्रिक्ट की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक इनोवेटिव मैकेनिज्म है जो स्लम्स में क्रिएट किया गया। पीरियड रूम, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई, डस्टबिन प्रोवाइड किया गया डिस्पोजल के लिए, सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स प्रोवाइड किए गए। और इससे अवेयरनेस जनरेट होगी क्या? डेफिनेटली अवेयरनेस जनरेट होगी। तो जो टैबू अटैच्ड है वो आप धीरे धीरे थ्रू सोसाइटल नजिंग, यू कैन से इट, आप दूर कर रहे हो। तो एथिक्स में एक पार्ट है सोशल परसुएशन। आप सिलेबस रीड करोगे ना, उसमें आपको वर्ड मिलेगा सोशल परसुएशन। ये हमने ट्रांसजेंडर्स में भी अप्लाई करा था कि नोएडा का प्राइड स्टेशन है जो ट्रांसजेंडर्स को एम्प्लॉय करता है। तो उसका भी काम क्या है? थ्रू दिस यूज ऑफ सोशल परसुएशन यू आर ट्राइंग टू चेंज द माइंडसेट एंड द आउटलुक ऑफ सोसाइटी। एंड सिमिलरली यू आर डूइंग द सेम थिंग हियर बाय क्रिएटिंग पीरियड रूम्स। इमेजिन करो रूरल इंडिया में आप आज से 10 साल बाद जाओ और आपको हर जगह along with the
टॉयलेट्स, पब्लिक यूरिनल्स जो आपको देखने को मिलते हैं, उसके साथ लगा हुआ आपको पीरियड रूम देखने को मिले, तो विल इट बी अ टैबू देन? इट विल नॉट बी अ टैबू देन. दिस इज नीड टू बी क्रिएटेड, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है. सिर्फ 45,000 में यू हैव क्रिएटेड वन पीरियड रूम. बहुत सस्ता भी है. ये कम्युनिटीज भी आपस में कलेक्ट करके बना सकते हैं इफ दे आर प्रॉपरली इंसेंटिवाइज्ड और इफ दे आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड. तो ये सोसाइटीज, कम्युनिटीज आपस में मिलके भी बना सकते हैं पीरियड रूम्स. बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है. बिकॉज यहां पे किसी को डाउट? बर्ड फ्लू पे फिर से आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में. एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज ये आप पढ़ सकते हैं. कमेंट कर दो अगर बर्ड फ्लू में कोई डाउट है किसी को. कुछ पूछना है, यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन फॉर द रिवीजन पर्पस, एनीथिंग, कुछ भी पूछना है, डिस्कस करना है. एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, इसके म्यूटेंट्स N8, N9, N7, एनी डाउट? ठीक है, तो ये रीड कर लेना, रिवीजन के लिए है. 4 से 5 आर्टिकल दे चुका हूं मैं अभी तक आपको एवियन इन्फ्लुएंजा पे फॉर द रिवीजन पर्पस. फोकस फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस में सिर्फ एग्जांपल की तरह आप इसको यूज करोगे, नथिंग एल्स. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसीज जो आप जूनोटिक डिसीजेस की जब बात करते हो मेंस में, तो उसमें एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हो, नथिंग एल्स. फाइन. FATF, इंडिया ने फाइनली कमेंट करा. हमने क्या डिस्कस करा था कि पाकिस्तान टैक्टिकल अटेम्प्ट्स के थ्रू ट्राइज टू बाईपास द स्क्रूटिनी ऑफ FATF. तो इंडिया ने, और तो इंडिया शुड हाईलाइट दीज टैक्टिकल अटेम्प्ट्स ऑफ पाकिस्तान and bring it in front of FATF and the world leaders, because now India is also the part of non-permanent member, is also a non-permanent member of UNSC and is a member of very important committees as well. तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि वो पाकिस्तान के इन टैक्टिकल अटेम्प्ट्स को हाईलाइट करे और इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर्स कंट्रीज के सामने लेके आए. और इंडिया के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं विद फ्रांस, यूएस एक्सेट्रा, तो डेफिनेटली इट कैन बी ऑफ हेल्प. तो इंडिया ने फाइनली कमेंट करा है, इंडिया हैज कॉल्ड दीज अटेम्प्ट्स एज फार्स, एंड ज्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं है. FATF के बारे में आपको बता ही चुका हूं मैं. सब पूछना है तो दोबारा पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको FATF के बारे में एवरीथिंग. कुछ डाउट है FATF से रिस्पेक्ट में, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, एनीथिंग, एनी डाउट? FATF की डिटेल्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. ये पूरा इशू टेरर फाइनेंसिंग, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, एटलीस्ट यहाँ पे जो तीसरा कंपोनेंट है, ऑब्जेक्टिव है FATF का, प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन बाकी दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट आएगा. ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी आएगा और टेरर फाइनेंसिंग में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. फाइन. तो 2 केसेस हैं. एक मसूद अजहर के खिलाफ अरेस्ट वारंट रिलीज कर दिया पाकिस्तान ने. क्यों? फरवरी में प्लेनरी सेशन होने वाला है और जनवरी में एशिया पैसिफिक ग्रुप की मीटिंग है FATF की. तो इट इज ट्राइंग टू शोकेस दैट वी आर कमिटेड टुवर्ड्स द 27 एक्शन प्लान व्हिच वाज प्रोपाउंडेड बाय द FATF फॉर पाकिस्तान, जिसमें 21 पे कंप्लाई कर चुका है, 6 पे नहीं करा है. 6 में मेजर इश्यूज क्या है? टेरर फाइनेंसिंग के इश्यूज हैं. चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अरेस्ट नहीं कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो, तो पाकिस्तान ये इस तरीके से शो कर रहा है कि हम देखो एक्शन ले रहे हैं. हमने जाकिर उल लाकवी को 15 साल की सजा दे दी, हमने मसूद अजहर को अरेस्ट वारंट रिलीज कर दिया, सो ऑन. तो ये सारे आर्टिकल्स थे आज के जो हमने डिस्कस करने थे. आपको कुछ डाउट है आप पूछिए, मैं वेट कर लेता हूं, अदरवाइज वी विल कॉल टुडे. सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का. प्लीज पर्सपेक्टिव डेवलप करिए, कॉन्सेप्ट्स डेवलप करिए. कंटेंट तो चेंज होता रहता है, आप पर्सपेक्टिव्स को रिवाइज करेंगे, याद रखेंगे. तो देखिए ऐसा है कि पर्सपेक्टिव याद करते वक्त कुछ कंटेंट ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, कुछ कंटेंट चेंज होता रहता है. तो वो रिवीजन के थ्रू अगर आप इस सेशन अटेंड करते हैं तो इसमें आपका रिवाइज होता ही रहता है ऑन टाइमली, इन अ टाइमली मैनर. तो कंटेंट की इतनी मत फिक्र करिए. एंड अ स्टूडेंट आस्क्ड मी कि क्या ये सीरीज जो मैं रन कर रहा हूं करंट अफेयर्स की, क्या ये अपने आप में सफिशिएंट है? कैन आई टोटली रिलाई ऑन दिस सीरीज?
of current affairs from the exams perspective? Then my answer is, for mains and for interview, even if you do not read daily newspaper, then it is fine. देखिए, इस सीरीज का नाम क्या है? मस्ट रीड करंट अफेयर्स। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप रीड करो। रीड करने से आपका रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, हाउ यू हैव टू यूज द थिंग्स, कीवर्ड्स, कैसी लैंग्वेज लिखनी है, और आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो मेरा तो ये हमेशा फोकस रहता है कि आप रीड करो। मस्ट रीड मैंने इसलिए इसको नाम दिया है। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करता हूं, टेलीग्राम पे भी, और यहाँ पे भी पीडीएफ हम डाउनलोड करते हैं। तो अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, आप मत पढ़ो, अलाउड है। बट ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आप पढ़ो। एंड ट्रस्ट मी, इसके बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डिलीवरिंग आउट हियर। अगर आप पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हो, कंटेंट तो हम समझते ही हैं, लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हो, तो मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो प्रीलिम्स में ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं जिनके लिए चाहिए होता है रिवीजन। मैं आपको कोई नोट्स तो प्रोवाइड कर नहीं रहा हूं यहाँ पे, प्रिंटेड मटेरियल मेरे पास ऐसा नहीं है कुछ भी कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं एंड मैं आपको बोलूं कि आप उसको रिलाय कर लो। तो प्रीलिम्स के लिए मैं आपको ये बात बोलूंगा कि प्रीलिम्स के लिए जब आखिरी के 3 या 4 महीने बचे हों, तो यू प्लीज सप्लीमेंट द करंट अफेयर्स प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स यूजिंग एनी कोचिंग्स राउंड अप मटेरियल। जो साल में राउंड अप मटेरियल होता है, मल्टीपल कोचिंग्स निकालती हैं, किसी भी एक कोचिंग का राउंड अप मटेरियल प्रिंटेड बुक वाला ले लेना। उसको एक बार जब गो थ्रू करोगे तो यू विल फाइंड कि ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। दैट इज इट। अदरवाइज कई ऐसी छोटे छोटे न्यूज होती हैं जो हम कई बार फटाफट डिस्कस करते हुए निकल जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं नहीं चाहता कि प्रीलिम्स में आप मुझे आके कल बोलो कि सर ये क्वेश्चन आ गया, ये फैक्ट हमें डिस्कस नहीं करा था। बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज मेरा मेजर फोकस रहता है अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्टिव पे। मैं आपको माइन्यूट डिटेल्स देने पे फोकस नहीं रखता हूं यहाँ पे, राइट? तो सप्लीमेंट अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को आप किसी भी राउंड अप मटेरियल से करो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिस भी कोचिंग का, उसका आप ले लेना और उसको सप्लीमेंट कर लेना अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मेंस और इंटरव्यू के लिए कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, इसको फॉलो करो। ट्रस्ट मी, इससे बढ़िया कंटेंट आपका नहीं डेवलप हो सकता है, बिकॉज यू योरसेल्फ आर डेवलपिंग द कंटेंट। मैं तो सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। एनी डाउट? शुड वी कॉल इट अ डे? Okay, fine. Thank you all for your patient listening. Have a great day ahead.